Good morning to all of you. Welcome to online class of social science. Today we will study civics chapter 7 understanding advertisements. Page number 80. Today we are surrounded by advertisements or ads as we call them. We watch these on television, listen to them on radio, see them on the streets and in newspapers and magazines. Even taxis and rickshaw carry advertisements on them. When we go to cinemas, we see advertisements before the film begins and on the internet. They often pop up when we go into different websites. What do advertisements do? How do they attract our attention? Read more to. आज हम अपने चारों ओर से एडवर्टीजमेंट से घिरे हुए हैं, जिन्हें हम आजकल ऐड कहते हैं। हम इन एड्स को टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, रोड साइड होर्डिंग्स में देखते हैं और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में पढ़ते हैं। जब हम पिक्चर हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो ये ऐड मूवी स्टार्ट होने से पहले और इंटरवल में भी दिखाए जाते हैं। जब हम इंटरनेट पर कुछ देखते हैं तब भी ऐड आते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं, ये हमारा अटेंशन कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। नाउ कम टू द पेज नंबर 81. Advertisements draw our attention to various products and describe them positively so that we become interested in buying them. In this chapter, we will focus on the two advertisements that you see above to understand what advertising does and how it works. एडवर्टीजमेंट हमारा अटेंशन वेरियस प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित करते हैं और उन प्रोडक्ट्स का पॉजिटिवली वर्णन करते हैं ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए विवश हो जाएं, प्रेरित हो जाएं। इस चैप्टर में हम दो एडवर्टीजमेंट्स पर फोकस करेंगे और यह समझेंगे कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है और कैसे काम करता है। बिल्डिंग ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यूज. Have you ever heard of the word brand? Advertising is all about building brands. At a very basic level, branding means stamping a product with a particular name or sign. This is done in order to differentiate it from other products in the market. क्या आपने कभी ब्रांड शब्द सुना है? एडवर्टीजमेंट एक्चुअल में ब्रांड बनाते हैं। बेसिक लेवल पर ब्रांड का अर्थ है किसी प्रोडक्ट पर किसी विशेष नाम या साइन की सील लगाना। एक प्रोडक्ट को मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए यह किया जाता है। प्रोडक्ट्स को अलग नाम क्यों दिए जाते हैं? नाउ कम टू द पेज नंबर 82. Dals or pulses are usually sold loose in the market. We usually know dals by their different types like मसूर की दाल, उड़द की दाल, etc. These names are not brand names. When a company takes मसूर की दाल and puts it into a packet, it will need to give the dal a special name. It needs to do this so that we don't confuse the dal in that particular packet with the dal that is sold loose. They decide on a name like top taste dal. This naming of the product is called branding. दालें मार्केट में खुले रूप से बिकती हैं। इन दालों को हम उनके नामों से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल आदि। ये ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन जब कोई कंपनी मसूर की लूज दाल पैकेट में बंद करके बेचती है तो उसी दाल को कोई स्पेशल नाम देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करने की नीड इसलिए है ताकि हम लूज दाल और पैकेज्ड दाल में कंफ्यूज ना हो जाएं। इस कारण कंपनी वाले एक नाम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे टॉप टेस्ट दाल। इस प्रकार प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम देना ब्रांडिंग कहलाता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ द सोप, देयर आर मेनी सोप्स इन द मार्केट टुडे. In bigger towns and cities, we
no longer just say soap, but rather refer to them using the different names of companies that make them. Given the many soaps in the market, the company will have to give the soap a different and special name. By doing this, they create another brand of soap. इसी प्रकार साबुन की ऐड को देखें। आज मार्केट में कई सारे सोप्स बिकते हैं। शहरों में हम सिर्फ साबुन ना कहकर उसको बनाने वाली कंपनीज का नाम लेते हैं। मार्केट में अनेक प्रकार के सोप्स अवेलेबल होने के कारण कंपनी को अपने सोप को एक डिफरेंट और स्पेशल नाम देना पड़ता है। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट may not make us buy it. The manufacturer that made the soap and the dal still have to convince us that their soap and dal are better than the others available in the market. This is where advertisement comes in. It plays a crucial role in trying to convince us to buy the product that is advertised. किसी प्रोडक्ट का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। सोप और दाल के मैन्युफैक्चरर को हमें यह विश्वास दिलाना होता है कि उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल दूसरे ब्रांड से ज़्यादा अच्छे हैं, और यहीं पर एडवर्टीज़मेंट का रोल शुरू होता है। हमें किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित करने में एडवर्टीज़मेंट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। द टास्क ऑफ क्रिएटिंग ए ब्रांड डज नॉट स्टॉप अस गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम। For example, just when Top Taste dal begin to be sold, another company decides to also sell dal in a packet and calls this Best Taste dal. So now there are two branded dal in the market. Both the companies are keen that you buy their dals. किसी ब्रांड को क्रिएट करके ब्रांड को एक स्पेशल नाम देने से ही खत्म नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉप टेस्ट दाल मार्केट में बिकना शुरू होती है, कोई दूसरी कंपनी मार्केट में पैकेज्ड दाल दूसरे नाम जैसे कि बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से बेचना शुरू कर देती है। अब मार्केट में दो पैकेज दालें हो गई और दोनों ही कंपनीज चाहती है कि कंज्यूमर उसकी ही दाल खरीदे। ऐसे में कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वह दोनों पैकेज दालों में क्या डिफरेंस है यह नहीं जान पाता। The consumer is confused because you really cannot tell the difference between top taste dal and best taste dal. The manufacturer has to give the consumer a reason to prefer a particular brand of dal. Just naming a dal does not help sell it. So advertisers begin claiming certain special values for their brand. In this way, they try to differentiate it. Now come to the page number 83. From other similar products. ऐसे में कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वह दोनों पैकेज दालों में क्या डिफरेंस है नहीं जान पाता। मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर को स्पेसिफिक ब्रांड की दाल खरीदने के लिए कारण बताना पड़ता है। केवल दाल को कोई नाम देना उस दाल की सेल को बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं करता। इसलिए एडवर्टाइजर्स अपने ब्रांड की स्पेशलिटी के बारे में कंज्यूमर को अपने ऐड के द्वारा बताते हैं और इस प्रकार वे अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स से अलग बताने की कोशिश करते हैं। ब्रांडिंग एक्चुअली केम फ्रॉम कैटल ग्रेजिंग। Cattle of different owners graze together in ranches and they often get mixed up. The owners thought of a solution. They started marking their cattle with the owner's sign by using a heated iron. This was called branding. ब्रांडिंग शब्द कैटल ग्रेजिंग से लिया गया है। अलग अलग ओनर्स के पशु रेंचेज में एक साथ चरते थे और उन्हें पहचानने में प्रॉब्लम होती थी। ओनर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने कैटल अपने खास साइन वाले गर्म लोहे से दागने लगे। इसे ही ब्रांडिंग कहा गया।